contribution in the pavilion. With me, I've got four outstanding cricketing minds, four former captains of Pakistan. I've got the young, dynamic Shoaib Malik. Shoaib, welcome. Assalamualaikum. Assalamualaikum, everyone. With that, I've got Mr. Dependable, Misbah Haq. Misbah, welcome back. Assalamualaikum ji. Walaikum salam. And the silver fox of the pavilion, Moin Khan. Moin, welcome back. Thank you ji. Assalamualaikum everyone. And the fantastic, forever amazing Wasim Akram. Wasim, welcome back. Thank you very much. Good evening. Assalamu alaikum. सबसे पहले तो आइए जरा मैच समरी पे नजर डालते हैं. How did it all go down? This is what happened today in Lucknow. Sri Lanka won the toss, elected to bat. They looked very, very good at one point. It seemed like we were going towards the 300 plus target, but then they capitulated, and it was something that happened. Something looked very familiar to us with Pakistan there for a minute. But good start there by Pereira, looking really good on top. Nissanka also looking good on top. But then the batting line just fell apart. Zampa coming to the party with 4 for 47. Australia must be really happy to see Zampa come into the game. And then, of course, Cummins and Stark. Mitchell Stark at one point right in the beginning was looking really, really lethal. In response, Inglis and Marsh made sure that Australia sealed this game with a contribution from the other batters as well. And, well, for Sri Lanka, Madhu Shanke looked really good. Some great bowling there, but 35.2 overs. Australia winning this one by 5 wickets. Congratulations to all the Australian fans around the world. And with that, time हुआ है कि नजर डालते हैं हम points table पे. So this is how the points table is looking now. Look at that, right. India still on top, New Zealand on top, 3 games each, 3-1. They're looking really good. South Africa up there with 2 games, 2 points, but a very healthy net run rate. Pakistan sitting on number 4 with 3 games, 2 wins, 1 losses and a negative run rate. England at 5, Afghanistan at 6 and Bangladesh 7. And Australia finally climbing up out of the bottom of the table. 3 games, 1 win. And they would like to improve that run rate. Sri Lanka struggling there. And that's your points table. Wasim, this was a game that looked to be a Sri Lanka game, but in the end, it just kind of all fell apart. I think ये ऑस्ट्रेलिया मैच नहीं जीता, ये श्रीलंका मैच हारा है. इनएक्सपीरियंस 155 पे एक आउट, परफेक्ट स्टार्ट. बोथ दी ओपनर्स, एक ने 61 किया, एक ने 78 किया. दे वर लुकिंग गुड, कंट्रोल ठीक है. विकेट गिर गई एक आपकी 125 पे, 155 तक पार्टनर भी. उसके बाद आपने सिर्फ 50 ओवर बैटिंग करनी थी विकेट हाथ में रख के. दैट्स इट. यू सी, अब जो टेस्ट क्रिकेट है उसमें डिफरेंट माइंडसेट चाहिए बैटर को. जो T20 है उसमें डिफरेंट माइंडसेट. वन डे क्रिकेट इज़ इन बिटवीन. यहाँ पे आपने इनिंग बनानी है. हर गेंद पे छक्का नहीं लगना, हर गेंद पे चौका नहीं लगना. अगर 2 बाउंसर कर दिए कमिंस ने तो उसको पीछे आके रोकना है. उससे अंधाधुंध शॉटें नहीं मारनी. अब इस लेवल पे अब कोच उन्हें क्या कह सकता है? इट्स देयर ओन फॉल्ट कि कंट्रोल आया हुआ मैच. जब तक 200 पे बैटिंग करना है, ऊपर से 2-3 आउट कर दिए उन्होंने, प्रेशर में डाल दिया, 2 आउट कर दिए. बट इट वाज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम. Yep. Let me also quickly first talk about Mitchell Marsh's batting there, Misbah. बड़ी जोरदार शॉटें मारी आज उन्होंने आते साथ ही. ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा है. ऑस्ट्रेलिया के जो मोस्टली जो जहाँ प्रॉब्लम नज़र आ रही थी, ओपनिंग पे प्रॉब्लम नज़र आ रही थी, आज बिल्कुल लाइसेंस लेके आए हैं. पहली बॉल पे उन्होंने जो शॉट मारा है वहाँ से उनके इरादे नज़र आ गए कि आज जो रोकने के मूड में नहीं, अटैक करेंगे. एंड दैट्स हाउ ही इज़ सो अफेक्टिव. जब वो डिफेंड करने जाते हैं अर्ली ऑन, पिछले दोनों मैचों में यही हुआ है, तो बड़ा मसला होता है उनके लिए. फ्री फ्लोइंग बैट्समैन है, अटैक करते हैं तो वो बड़े डेंजरस हो जाते हैं. स्पिनर को भी अटैक किया, फास्ट बॉलर को बहुत जल्दी पिक करते हैं लेंथ को, जब माइंडसेट उनका डिफरेंट होता है. तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया विल बी वेरी हैप्पी. एक तो मैच जीते हैं, दूसरा ये कि उनके जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर थे उन्होंने परफॉर्म किया है. सो गोइंग इनटू द नेक्स्ट गेम काफ़ी चीज़ें जो है बेहतर नज़र आ रही हैं. यूँ नहीं लग रहा मोइन के अचानक मोमेंटम मिल गया ऑस्ट्रेलिया को, और हमारे साथ मैच है उनका, अगला हमारा मैच है उनके साथ. अब ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसी है, जब भी टफ टाइम्स आते हैं कम बैक करती है टीम. आज नज़र आया कि फर्स्ट 20 जो 1 ओवर्स थे वहाँ तक नज़र आ रहा था गेम के श्रीलंका बहुत ही आराम से. लेकिन कंसिस्टेंसी जो थी आज, जो प्रेशर डालने में वो ट्राई करे जाते थे, बाउंसर्स ट्राई कर रहे हैं, और फिर नेचुरली जैम्पा का फॉर्म में आना, विद इन द स्टम्प्स गेंद करना, वो
आई थिंक वो डिफरेंस नज़र आया आज जैम्पा की वजह से, एक्चुअल डिफरेंस नज़र आया। और जो कांस्टेंट अटैक था, जो कहना चाहिए, जब ने देखा काउंटर अटैक 125 पे एक विकेट गिरी हुई है और उसके बाद 84 रन और बने और तमाम टीम आउट हो गई, तो आई थिंक बीच में किसी भी श्रीलंकन बैट्समैन ने यहाँ पे कोशिश नहीं की कि रना बॉल जाएँ या स्ट्राइक रोटेट करते रहें, दे वर कीप ट्राइंग स्ट्रोक्स, और जिसकी वजह से वो आउट हुए। आई थिंक फील्डिंग मैं फिर कहूँगा इतनी अच्छी नहीं थी आज ऑस्ट्रेलिया की, 2 कैचेस भी छूटे इस इनिंग के अंदर, लेकिन देवर देयर लाइक लग रहा था वो उनका जो एक, जैसे मैंने बात की थी कि एक फ्लेयर है, वो ऑस्ट्रेलियन फ्लेयर आज फिर नज़र आया कि वो जो कांस्टेंट उनका एफर्ट होता है उसी से आप कम बैक करते हैं। बिल्कुल ऐसी है। शुएब, जैम्पा ने जब आज बॉलिंग शुरू की तो थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर कर रहे थे, बट 1-2 ओवर के बाद ही जस्ट स्टार्टेड, वो बिल्कुल विकेटों के बीच में आ गए एंड ही वेंट विकेट टू विकेट। पोस्ट मैच में भी अगर उनका इंटरव्यू देखें तो उनसे एक क्वेश्चन हुआ, उसमें उन्होंने पूछा कि आज डिफरेंट क्या किया है, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने कुछ डिफरेंट नहीं किया। सो इट मीन्स के कॉन्फिडेंस जो था वो मिसिंग था उनमें। और आई गेस मस्ट क्रेडिट देना चाहिए कैप्टन को कि कैप्टन ने हमेशा से यही मैसेज दिया उनको कि यू आर विकेट टेकिंग बॉलर, वी ओनली एक्सपेक्ट विकेट्स फ्रॉम यू, और उन्होंने वही ट्राई की। लेग स्पिनर का यही है। आज उनकी बॉलिंग में थोड़ी सी जो चेंज थी, जो विद इन स्टम्प्स जो हमें नज़र आई, वो ये था कि वो लो ट्रेजेक्ट्री से मोस्टली वो जो फ्लिपर्स टाइप होते हैं वो कर रहे थे और गुगली कर रहे थे। तो जब लेग स्पिनर की लेग स्पिन जगह पे ना गिर रही हो तो जो ये वाले 2 वेपन्स हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, जो आज उन्होंने किया। आई डोंट नो उनको किसने बोला ये चीज़ या उन्होंने खुद अपने साथ बात की, बट द मेन डिफरेंस वाज कि वो जो लो ट्रेजेक्ट्री वाले विद इन द स्टम्प्स जो द ग्रेट शेन वॉर्न करते थे, तो आज ये उनमें नज़र आया कि वो लो ट्रेजेक्ट्री वाला विद इन द स्टम्प्स जो है वो सक्सेस दिलाएगा। और एक चीज़ बहुत अच्छी हुई, जो डेविड वार्नर ने कैच किया कुशाल मेंडिस का, जो बहुत इनफॉर्म बैटर है, जब उस शॉट उन्होंने वही खेला था जो शदाब को खेल रहे थे वो मिड विकेट की तरफ, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा फील्डर जो था वो टुवर्ड्स मिड विकेट रखा हुआ था, बट ऑफ कोर्स इट वाज अ रनिंग कैच। डेविड वार्नर ने वो कैच लिया, वहाँ से जो है बहुत मसला शुरू हुआ। ये जैम्पा का पिच मैप है, इसके ऊपर जरा नज़र डाल लेते हैं कि आज जैम्पा ने किस नौयत की जो है वो बॉलिंग की, अगर आप ये गौर से देखें। यस मिसबा, ये जो मलिक ने बात की है, आप देखें मोस्टली जो बॉलें हैं वो विकेट टू विकेट फिनिश की है उन्होंने, और ऑब्वियस स्पीड जो है वो डिफरेंट थी, फिनिश किया स्टम्प्स में। और मुझे लगता है कि श्रीलंकन बैटर्स को पिक भी नहीं हो रहा था, वो लेग स्पिन खेलने गए हैं मोस्टली बैट्समैन, और फ्लिपर और गुगली पे लेग भी 4 हुए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इतने बुरी परफॉर्मेंस के बाद 1-2 मैचों में, बल्कि साउथ अफ्रीका से अंडर प्रेशर थे, उसके बाद इस तरह का कमबैक करना, टीम भी ऐसी सिचुएशन में थी दैट शोज़ के ही इज़ गोइंग टू बी द की इन नेक्स्ट मैचेस। मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं आप, और फिर टीम आपको बैक कर रही होती है, उस कॉन्फिडेंस आप पे शो कर रही होती है। तो आज वो उन्होंने दिखाया। तो आई थिंक इंडिया में जब आप खेल रहे हो और एक आपका मेन स्पिनर हो, उसका फॉर्म में आना, उसकी इस तरह की बॉलिंग करना बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वसीम, वार्नर का LBW बहुत से सवालिया निशान है उसके ऊपर और बहुत सा कंफ्यूजन है। व्हाट आर योर इनिशियल थॉट्स? एज अ बॉलर या एज अ व्यूअर अगर आप देख रहे हैं टेलीविजन पे भी, नेकेड आई से देखेंगे तो इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग डाउन लाइक माइल्स। ऐसी जब हम खेलते थे इस पे अपील भी नहीं थी होती, बिकॉज वो लग रहा था एंगल से बॉल बाहर नहीं निकला, सीधा रहा, अंदर आया और लेग स्टंप की तरफ जा रहा था, बट अंपायर ने आउट दिया हुआ था। वही तो हम डिस्कस कर रहे हैं, अंपायर ने आउट दिया तो वो क्लिप ही करना था, हल्का सा किसी करना। देखें नेकेड आई से देखें, ये आपका नॉर्मल से ये देखें, अब उसके दोनों स्टंप नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल ये देखें, अब ये कैसे आउट हो, एंगल से ही वो बाहर जा रहा है। आप देखें ना वसीम भाई, जब इम्पैक्ट जहाँ पे दिखा रहे हैं वो समझ नहीं आती कि इम्पैक्ट आप इसी लेफ्ट आर्म के एंगल से ही वो बॉल ऐसे जा रहा है, वो ऐसे आ ही नहीं रहा। यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ ही नहीं जहाँ पे ये मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप उसको वहाँ स्टॉप करें जहाँ पे इम्पैक्ट हुआ, और जहाँ पे बाद में दिखा रहे हैं इम्पैक्ट, वहाँ पे इम्पैक्ट है ही नहीं, इम्पैक्ट उससे एक फ्रेम बाद हुआ है। मेरे ख्याल में जहाँ बॉल लगता है ना, उसके बाद टेक्नोलॉजी की जगह ऐसा आ जाता है अल्लाह दी स्पुर्द, जिधर भी ले जाओ। कल भी हम लोग डिबेट की थी इसी चीज़ के ऊपर, कल भी बहुत डिबेट की थी हमने। जो जहाँ ये रिप्ले दोबारा आप देखेंगे ना, जब बॉल हिट हुआ है और जब होकाई ने शो किया है, ये यहाँ आप रोके ना, ये देखें ये हिट हुआ है, यहाँ पे हिट हुआ है। अब देखें
यहाँ पे हिट हुआ है, नजर आ रही लिटरली। इस यहाँ से कभी अभी आप अगले उस पे जाएं जिस पे सिर्फ वो हॉकाय दिखा रहा है, तो आप देखिएगा कि वो कितना पहले उन्होंने हिट करा दिया है इसको। एक और चीज भी है इसमें वसीम भाई, ये देखें, ये यहाँ पे हिट करा दिया उसने। जब ये आप हटाएंगे ना नेक्स्ट, जिसमें बैट्समैन नहीं नजर आ रहा, नेक्स्ट जो स्टेप है, तो आप देखिएगा कि बॉल अब कितना पहले उसने हिट कर दिया, हालांकि बॉल बहुत पीछे जाके लगा है। और अभी 4 फुट बॉल ट्रैवल भी और करना था। हाँ जी, Leslie और swing और एक और चीज है इसमें, बहुत डिफरेंस, बड़ा स्ट्रॉन्ग वाला एलिमेंट है कि लेफ्ट हैंड बैटर है और लेफ्ट आर्मर है, और एंगल से ऑलरेडी बॉल बाहर जा रहा है, और उसको वहां से उन्होंने मतलब अंदर की तरफ ले यही तो टेक्नोलॉजी का कमाल है। अगली बाहर टांग जाती है, देखे किसको अंदर कर देते हैं। अगली टांग उसकी पूरी हवा में है, वो देखे वो उछल के खेला है बॉल पूरा। I know this अच्छा, is मजे की बात ये वार्नर इसके बाद बिल्कुल गुस्सा नहीं किया था साउथ। हाँ, बड़े वो प्यार बड़े मोहब्बत cool, और calm हाँ, है वो। बड़े तहम्मुल के साथ वो बाहर चले गए थे। एक उसको ये क्रेडिट दूंगा कि उसको गुस्सा बिल्कुल नहीं आया मेरे सबर बहुत है। बिल्कुल नहीं है। उसमें दुनिया में जो हर चीज थी वो बोलता गया है। और के अंदर डोंट से- ब्लेम हिम ईदर, आई एम ऑन योर साइड बोनी। That was just terrible. I think there needs to be a introspect into this entire technology. I think there needs to be more that needs to be done. और मेरा ख्याल है कि top notch technologists की जरूरत है। Maybe get in touch with. कॉन्फिडेंस बिल्कुल आपने ना शेटर कर दिया है जिस किस्म के लेग बिफोर हो रहे हैं। आप लगे तो आपको, आप यही सोच रहे डर होता है कि कि आप यही सोचेंगे कोई ना ही ले रिव्यू, तो या अंपायर ना हो। आपकी रिव्यू से जान जानी शुरू हो गई है कि यार पता नहीं है रिव्यू जो है मैनू इंजी ना मरवा दे। मैं पहला बैटर था जब डीआरएस आया था, मैं पहला ऐसे ये वार्नर बिल्कुल प्यार मोहब्बत का इजहार करते हुए इनके लबों पे खुशी और बहुत ही It's a big सब्र के stage. साथ। It's a World Cup and team is struggling, and you played that beautiful shot towards mid wicket, that massive six, just flick of a hand. Such a strong player, and obviously upset होना है यार आपने। ऐसे भी टेक्नोलॉजी अगर लेके आए हैं तो बेटरमेंट के लिए थी। नहीं, so लेकिन ये मुझे लग रहा है I am wondering if there is anybody working on improving the technology. I have no idea. I doubt it. Otherwise ICC should be following up with the technology provider. Okay, are you improving it? Because there And there's needs to only be one more- company in the world Yeah. who does this, Hawkeye. Yeah. Well, if there are other young innovators out there listening to this conversation, and I know that there are a lot of them, और आप लोगों के हमें YouTube के ऊपर वो जो आप comments आ रहे होते हैं from around the world, some of you work in the Silicon Valley, maybe it's time for you to look into this. There could be a big opportunity right there. And with that, we're going to take a break right here on the Pavilion. When we come back, there's more on the other side. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स एंड द एयरवाइज ऐप आर कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 इन इंडिया। लखनऊ से खबर, ऑस्ट्रेलिया ने अपना मैच जीत लिया है एंड विद दैट वी वर टॉकिंग अबाउट द गेम। वापस चलते हैं, हमने वो अभी वार्नर के और रिव्यू सिस्टम के बारे में बात की, बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट the partnership that the Australians put up right on top. Very special partnership there, Wasim, between the two top order. Yeah, मिसबा nailed it कि उनके जो बैटर्स आउट ऑफ टच थे उनको थोड़ी बैटिंग भी मिल गई। मिच मार्श पहली गेंद पे जो उसने चौका मारा है, और पहले ओवर में जब 15 रन लिए हैं, वो जो नया बॉलर खिलाया था लहीरू, उसके बाद आई थिंक ही इज़ अ डेंजरस प्लेयर नो डाउट। सो दो मैचों में नहीं चला, उन्होंने उस पर कॉन्फिडेंस रखा है, एंड देन ही इन द एंड गॉट 52 or 51. Maxwell got some runs, Labuschagne got some runs, and of course Stoinis got 20 of 10 deliveries. So everybody kind of got in today. So that's a good sign for Australian going on into this World Cup. मधु शंके बोल्ड रियली वेल श्रीलंका की तरफ से। बहुत ही बड़ा जबरदस्त उनका बॉल जो था स्विंग हो रहा था शुरू के ओवर्स के अंदर। एंड वसीम, यू बीइंग अ लेफ्टी योरसेल्फ, very would have been impressive. very happy. He's a only 22-year-old boy, a very young boy, and just started playing international cricket. I mean, it was pace, it was length, and full victim लेने के लिए जा रहा था, और late swing भी इसका हुआ है। And he's got in the end he's got 3 for 38, but शुरू के तीनों apart from one out इसी ने आउट किए हैं। But very hard working guy. Yeah, अभी अच्छा। LPL में ये हमारी टीम में ही था, और यंगस्टर जो है उनको सीखने के लिए विलिंग होना चाहिए। Yes. So he's one of those. Okay. And I guess he's improving day by day, and we have seen taking 3 and wickets. reasonable pace. Yes. It's about 138, 140. 140 kilometers an hour, average and, speed उसकी average बिल्कुल speed ऐसी है। is there. And look at the lengths he's bowling at. बिल्कुल asking question literally on every delivery.
पर वसीम भाई इसको 3-4 ओवर करके ना इसको चेंज कर दिया था, यहाँ विकेटें भी 2 ली हुई थी इसने। अच्छा। मेरा ख्याल है इसको दोबारा लेके आना चाहिए था, बहुत लेट लेके आया जब दोबारा लेके आया, क्योंकि विकेट ले रहा था वहाँ पे बहुत ज़रूरी था, विकेटें ही चाहिए थी। मेन बॉलर 8-7-8 भी करते, 7-8 भी करते, क्योंकि टोटल चेस कर रहे टोटल था बाकी कि इनको चाहिए था कि अगर ये विकेट ले रहा था, रिदम में था, इसको करा देते, 7-8 ओवर करा देते, मैं भी 1-2 विकेट और लेता। तो बिग क्वेश्चन इज नाउ डेज कि आजकल के बॉलर्स 8 ओवर 7 इकट्ठे कर सकते हैं, दे शुड बी एबल टू। क्वेश्चन वैसे भी बड़ा वैलिड क्वेश्चन इसलिए भी है कि श्रीलंका की टीम में जो फिटनेस प्रॉब्लम चल रही है ना, बहुत कंसर्न है, तो मे भी शायद उसको आगे के मैचेस के लिए थोड़ा सा रोका हुआ है, बचाया हो। लेकिन आप मैच टू मैच जाते हैं, जिस सिचुएशन में उसको हटाया है बॉलिंग से, अगर वहाँ 3-4 ओवर कराते तो यकीनन जिस लाइन लेंथ पे गेंद कर रहा था, बहुत मुश्किल हो रही थी, बैट्समैन किसी का पैर नहीं निकल रहा था बाहर, क्रॉस खेलते हुए आउट हुआ उसको। लुकी फर्गसन ने किए थे उस दिन वसीम भाई, उसकी पेस वाले बॉलर ने भी, लुकी फर्गसन ने उस दिन अगेंस्ट बांग्लादेश मिडिल ओवर्स में उसने लंबा स्पेल किया, कोई 6-7 ओवर का उसने स्पेल किया। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसका बॉल अंदर तो आता ही है बहुत अच्छा, उसके बाद विद एंगल जो सीधा रह जाता है ना बॉल, जो हल्का सा ऐसे लगता है कि आउट स्विंग है, वो उस वजह से भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है बैट्समैन को। बिल्कुल ऐसा एंगल आपको बन रहा है अंदर के लिए, आप पूरा ऐसे जाते हैं और वहाँ से जैसे ज़ाहिर है लेफ्ट आर्म और आप भी करते थे, वहीं से बॉल जो 2 सीधे रहे हैं ना, तो वो बिल्कुल ही एज ए बैट्समैन स्मिथ जो खेले हैं उसके बाद वो बिल्कुल ही वाज़न्ट श्योर कि मैं कौन सी लाइन किस साइड पे खेलूं इसको, बिकॉज स्मिथ को उन्होंने बड़ा अच्छा सेटअप भी किया है, उन्होंने फीड किया है पहले उनको, और उसके बाद वो जो स्मिथ की मेरा ख्याल है पक्की जगह है, क्योंकि अगर एक ही स्विंग हो रहा है ना तो एज ए बैट्समैन आप सेटल हो जाते हैं कि ठीक है यहाँ से बॉल आएगा तो मैं अंदर की लाइन खेलूंगा, लेकिन एक बॉल वहीं से सीधा रह जाए ना तो फिर आप बिल्कुल हिल जाते हैं बैट्समैन। शेन वॉटसन ने कमेंट्री में कहा है कि स्टीव स्मिथ यूजुअली ये गेंद मिस नहीं करता जी, जिसमें ये चौका ही है उसका, ये गेंद बड़ी दफा देखा ऑफ स्टंप पे आके मिडिल से वो खेलता है, आउट ऑफ फॉर्म है, आउट ऑफ टच है, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली मिसपा सेड एज वेल, एंड दिस हैपेंस व्हेन अ बैटर गेट्स आउट ऑफ फॉर्म, वो इस तरह की गेंदें मिस करता है यूजुअली जिस पे वो चौका मारता है, जो उसकी पक्की, जो उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी होते हैं वो वहाँ पर भी वो मिस कर जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट जॉश इंग्लिश, मोइन, ही इज जस्टिफाइड हिज रिटर्न इनटू द टीम। बिल्कुल, आज जिस तरह रन किए उन्होंने आके और बड़ा इंटेंट नज़र आ रहा था, आते ही उन्होंने पॉजिटिविटी दिखाई है, जिसकी वजह से उस वक्त टीम को ज़रूरत भी थी, 2 विकेटें गिर गई तीनों, वहाँ पे अगर विकेट गिरती, ऑल्दो ये एज लगा था, लेकिन आप ये देखें बड़ी पॉजिटिव हिट मारी है, फुल टॉस मिली है, आते ही सेकंड बॉल पे इस तरह की हिट मारना, और थ्रू आउट द इनिंग उन्होंने हर तरफ शॉट्स खेले, और इससे पता लगता है जो शॉट खेला था कि कितना कॉन्फिडेंस था आज उनके अंदर, यू नो। और यहाँ ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों की कोशिश यही थी कि ऑन द क्रीज मौजूद रहे, यू नो, और यही वजह थी जिसकी वजह से एट दी एंड जो छोटी छोटी 3-4 पार्टनरशिप्स हुई हैं उसकी वजह से चेज़ किया, वरना अभी तक पूरे टूर्नामेंट में दोनों मैचों में 200 रन नहीं बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले, यू नो। आई थिंक वो जो आपने पार्टनरशिप से सवाल है जी, जितने विकेट कीपर्स हैं इनके स्ट्राइक रेट्स बहुत अच्छे होते हैं और ये बड़ा मज़े का खेलते हैं, बड़ा मज़ा आता है इनको देखने का, विकेट कीपर जब खेलते हैं ना बैटिंग कर रहे हो, इसकी क्या वजह? जब आप भी खेलते थे बड़ा मज़ा आता है। आई थिंक आपको गेम अवेयरनेस, सबसे इम्पोर्टेंट तो चीज़ गेम अवेयरनेस है, यू नो। जिस तरह की क्रिकेट आज इतनी फास्ट हो गई है, स्ट्राइक रेट की क्रिकेट है, तो आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाता है एज अ विकेट कीपर इन द टीम विद अ वेरी गुड लाइक बैटिंग कर सकता हो, यू नो। तो आपको एंगल्स का बहुत ज़्यादा पता होता है, बीइंग अ विकेट कीपर आपके पास विजन बड़ा क्लियर होता है, तो आप ईजीली मैनिपुलेट कर सकते हो उसको, इनोवेट कर सकते हो शॉट्स। तो यही चीज़ आज हमने देखी, जिस तरह उसने शॉट्स खेले। मेरा ख्याल है कि ये जो एक प्रैक्टिस है विकेट कीपिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट अगर कोई मैच में करता तो विकेट कीपर, और आई ऑन द बॉल अगर आप कहेंगे तो सबसे ज़्यादा उसी की होती है। तो आई थिंक वो एक प्रैक्टिस भी होती है जिसकी वजह से आपको एक कहना चाहिए एक दिलेरी आ जाती है, या चांस लेने का आपको, यू नो, एक मौका मिलता है, या हिम्मत होती है आपके अंदर। सबसे ज़्यादा जो मेरे ख्याल में मोइन भाई, क्योंकि आप 50 ओवर अगर वनडे मैच में कीपिंग कर रहे हैं तो कोई और देखे ना देखे, आप कम से कम 300 के 300 बॉलों का आप विकेट कीपर को पता होता है कि कितना बॉल बाउंस हुआ है, कितना स्विंग हुआ है, किस तरफ जा रहा है। तो मेरा वो सेट तो वैसे ही हो जाते हैं, इसीलिए वो पहले बॉल से ही आके उनको पता होता है कि जी किधर जा रहे हैं, तो वो
बड़े आराम से खेलते हैं। मुझे भी आप लोगों ने खेलते हुए देखा होगा ना, जब मुझे कुछ समझ नहीं आता था मैं स्वीप मार देता था। अब पता है ये वसीम भी कह रहे हैं, पता है मोइन भाई ये ब्लेसिंग्स हैं कि अगर विकेट कीपर आपका मिडिल ऑर्डर में खेलता हो, ब्लेसिंग है आजकल तो, इट्स अ नीड ऑफ द आवर। Either As a keeper, an opener you can't just be a or keeper bat in the middle anymore. middle ये order. भी बैटिंग करता हूँ मुझे लगता है। ब्रिलियंट लेंथ पे कीपर चार आप जैसे आप इन टीमों के अंदर देख ले, हर टीम के पास 2-2 3-3 विकेट कीपर है, दे आर प्लेइंग इन द 11। चार टीमें जो है इस वक्त उनके विकेट कीपर कप्तान है। जी बिल्कुल ठीक ऐसे है ना, वो जॉस बटलर, टॉम लेथम, स्कॉट एडवर्ड्स एंड कुसाल मेंडिस। सो यू नो दिस इज अ स्पेशल। Wildly भी दिया है। नहीं, मेरे पास कहीं और से है। कीपर एक डिफरेंट ब्रीड है जी देखें, फास्ट बॉलर्स एक डिफरेंट ब्रीड है, मीडियम पेसर्स डिफरेंट ब्रीड है, बिल्कुल ऐसी। ओपनर्स डिफरेंट है, मिडिल ऑर्डर डिफरेंट, पर्सनालिटी वाइज बात कर रहा हूँ। और कीपर बिल्कुल, और सबसे जो ऑड हैं वो है राइट आर्म लेग स्पिनर्स, बड़े झूठे होंगे ने चल गया। ये आप मुश्ताक की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं? मुश्ताक का नाम ले लो, generally बात ग्रेट कर रहे शेन हैं वॉर्न का नाम ले लो, सारे छोड़ू बड़े होते हैं। बॉल भी छोड़ के गिरते। And with that, it's time for a break right here on the Pavilion. But keep watching A Sports, Sun Sports, and the ARY's app. Right, welcome back to the Pavilion. मैं फखर आलम, आप देख रहे हैं A Sports, Sun Sports, and the ARY's app. Our continuing coverage of the ICC Men's World Cup 2023. News out of Lucknow, Australia winning this one. श्रीलंका ने आज टॉस जीतकर पहले बैटिंग की थी और उसके हवाले से कुछ बात कर लेते हैं. At one point they looked like they were going to post a very big total, Moin, Sri-Lanka. मोइन चट मार रहे हैं। 100%। 3 पेन ना उन्होंने ये वाले यार इसमें चट क्या लगाने है, वाले इसमें हंसी की क्या बात है, पहले ये तो बताइए। यहाँ पे भी रखे हुए ये हैं। ले ले। 3 यहाँ पे भी पेन रखे हुए हैं कि एक मुंह या दूसरा कर लेना। यार मेरा हाफजा अच्छा नहीं है, मुझे लगाना पड़ता है। आप लोग माशाल्लाह बहुत मैंने भी तेज लगाए हैं। हैं। इसमें हाजमे की क्या बात है? हाजमा आपका है, हाजमा की अगर बात करें तो आप पे आती है, हाजमा नहीं हाफजा। Oh, memory basically. Sorry, my apologies. I thought you said Hazma, but then I only think in one way. आप बैल मुझे टक्कर मार। I know, I बट know. आपने जो सवाल किया था, Let's go back to that, बहुत ही अच्छा स्टार्ट, आइडियल स्टार्ट मिला हाँ, था, यू नो, और 125 रन की पार्टनरशिप हो जाए उसके बाद जितने भी बैट्समैन आए वो कहीं भी लाइक वो जो क्या बारिश की वजह से जो इंटरप्शन थी उसकी वजह से कोई मोमेंटम मेरा नहीं ख्याल है कि इतना ज्यादा कोई मोमेंटम टूटा होगा, बट आपने जैसे वसीम भाई ने बोला था कि आपको रना बॉल या तूफान खेलना तो नहीं था ना आया। हाँ, प्रेशर तूफान तो नहीं था तूफान आया नहीं आया बिल्कुल। प्रेशर बहुत ज़्यादा ले लिया मेरा ख्याल है कि यहाँ पे श्रीलंकन बैट्समैन ने, और जो कांस्टेंट प्रेशर था ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की तरफ से वो मेरा ख्याल है कि उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की, स्पेशली जैम्पा की। यहाँ पे जो एग्जांपल हमने शोएब ने भी बात की आज के, विकेट टू विकेट बॉल कर रहे थे वो, यू नो, और उसी में वो बहुत ज़्यादा मिस रीड किया जिसकी वजह से LBWs भी उनको मिले, और यही मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा लैग कर रहे थे यहाँ श्रीलंकन बैटिंग, जो कि प्रीवियसली मैचेस में बहुत फॉर्म में थी। तो यहाँ पे जहाँ कैरी ऑन करना था, पार्टनरशिप को लेके बिल्डअप करना था, वहाँ बिल्कुल ही प्रेशर में नज़र आया, यू नो। तो ये जो प्रेशर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने डाला विकेट टू विकेट बॉल करके, लाइक जिस तरह कमिंस ने भी आके बीच में बाउंसर्स किए, यू नो, थोड़ा सा प्रेशराइज किया उनको, थोड़ा सा आके ऑस्ट्रेलियन वे में उन्होंने बॉलिंग की, थोड़ा अटैक किया, और ऐसी सिचुएशन में थोड़ा आप सेंसिबल खेलते हैं। जो सेट बैट्समैन थे उनको चाहिए था कि एक ने थ्रू खेल के जाना है, बड़े कैजुअल तरीके से आउट हुए हैं दोनों। निशांका ने पुल मारी जानते हुए कि ऊंचे बाउंसर कर रहे हैं और फील्डर है वहाँ पे। आप जब सेट हैं तो आपको चाहिए कि आप थ्रू द इनिंग पूरा एंड तक खेल जाएं एक तरफ से, तो आपको एक बड़ा टोटल मिलता है। उसके बाद इतना ज़बरदस्त खेल रहे थे कुशाल परेरा, उन्होंने भी वो शॉर्ट बॉल को अच्छा हैंडल कर रहे थे, बड़ी दूर से खुला एक पुश किया, बॉल वहाँ पे था ही नहीं। वो जैसे ही आउट हुए हैं, तो ये विकेट ऐसी नहीं है, यहाँ पे हमने देखा लखनऊ में नए बैट्समैन के लिए आके थोड़ी सी मुश्किल होती है, इजी रन नहीं मिलते, आराम से रोटेशन नहीं होती, प्रेशर बिल्ड होता है, विकेटें गिरती हैं। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा दोनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्होंने यहाँ पे थोड़ा लंबा लेके जाना चाहिए, नहीं गया। इवन इन फॉर्म जो मेंडिस था, मेंडिस ने भी बड़ा एक बैट शॉट था, वो टाइम नहीं था उस शॉट का जिस तरह उन्होंने हिट मारी है। बहुत अर्ली था, बहुत अर्ली था। जब आप बहुत सेट early होते था, हैं तो बिल्कुल। फिर इजी होता वो है। जिस स्ट्राइक रेट से इस वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं कुशाल मेंडिस, वो ऐसे ही शॉट्स खेल रहे हैं, लेकिन वो पहले ये था कि अच्छा कनेक्शन होता था, वो बाउंड्री के बाहर जा रहे थे, लेकिन ये उनके पेट शॉट्स हैं, उन्होंने बहुत रन्स बनाए। इट्स अ पेट शॉट, बट समटाइम्स एट दिस लेवल सच अ क्रंच गेम,
that you've lost 2 out of 2. Third game is important. As a batter, international level should be able to adapt according to the situation. अपनी game, I'm all for अपनी game. कि मेरी गेम है, मैंने स्ट्राइक रेट जाना, बट सिचुएशन की किसी और की जरूरत थी कि गो 4 and over, 3 and over till the 35 overs. पिचेस डिफरेंट थी पहले दोनों मैचेस में और वो जल्दी आए हैं, पेस ऑन द बॉल, टाइम हो गए, आपके 3-4 शॉट लग गए, उसके बाद इजी हो जाता है, बट स्टार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. And it's time for a break. Welcome back to the Pavilion. You're watching A Sports 10 Sports in the Airwise app. I'm Fakhri Anam, and with me, I've got 4 outstanding cricketing minds: Shoaib Malik, Misbah ul Haq Moin Khan, and Wasim Akram. क्या गिरा है? भाई क्या गिरा? भाई हमसे कुछ पूछ लो नहीं तो सो जाएंगे. शोएब मलिक जो है वो कह रहे हैं हमसे कुछ पूछ लो वरना हम सो जाएंगे. जागते रहना, तो मेरे दिन ना रहना. Okay. And the way forward, Wasim, what do you think? Should we ask Moin? I think so. Moin, should I ask you or should I just go with Misbah? जैसे आपका दिल करे. चल फिर शोएब तू बता दे क्या कहना है. श्रीलंका का वे फॉरवर्ड इट्स वेरी सिंपल. वो ये है कि किसी तरह एक और स्पिनर ले आए अपनी टीम में. और जैसे आज बहुत अच्छा स्टार्ट था, जो मिडिल ऑर्डर है उनको थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. और जैसी उनकी टीम है, मुझे लगता है कि उनको प्रॉपर 5 बॉलर से खेलना चाहिए, क्योंकि जब उनका 5th बॉलर आता है जिसमें धनंजय डिसिल्वा जो है उनको बॉलिंग करनी पड़ती है और वो मजबूरी बन जाती है. फिर अगर आप कम रन्स लगाएंगे और आपके पास 5 बॉलर्स पूरे भी नहीं हैं तो वो इशू रहेगा हमेशा के लिए. तो आप प्रॉपर 6 बैटर और 5 बॉलर्स खिलाएं, क्योंकि विकेट कीपर जो है उनका ऑलरेडी 3 नंबर खेलता है कुशाल मेंडिस. Alright, दोस्तों, इसके साथ ही अब हम एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं, बट वक्फे के बाद #AskThePavilion ये आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है. #AskThePavilion. आप अपने सवालात एक्स फॉर्मली ट्विटर के थ्रू भी भेज सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अब टिकटॉक के थ्रू भी आप हमें टैग कर सकते हैं. सो सेंड अस योर क्वेश्चंस, योर कमेंट्स एंड ऑल दैट. इसके ऊपर बात करेंगे. और आज शो खत्म होने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इट बिट गुलकन का पूरा कोड क्या है. टुडे आई विल डिस्क्लोज एंड शेयर दैट विद यू. इट बिट गुलकन. लेते हैं एक वक्फा. Hello and welcome to the Pavilion. I'm Fakhri Anam. आप देख रहे हैं Sports 10 Sports and the Airwise app. The news out of Lucknow is that Australia winning the first game in this World Cup, and well, Sri Lanka have a lot of hard work to do ahead. With that, it's time for Ask the Pavilion. आप लोगों का favorite segment जहाँ पर आप लोगों के सवालात और comments हम लोग शेयर करते हैं यहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर. And with that, सबसे पहले वसीम आपकी तरफ आ रहा हूँ. राना अदनान 100018 आपका ट्विटर हैंडल है और आप पूछ रहे हैं वसीम अकरम से, सर, how you played 356 ODIs and 104 tests as fast bowler. Nowadays, fast bowlers get injured after playing some continuous matches. What was your diet plan and training routine at that time? Please tell us how a fast bowler can prolong his career. Good question. 100 टेस्ट मैचों के अलावा आई थिंक 113 फर्स्ट क्लास मैचेस भी हैं, Very good. इंक्लूडिंग 100 टेस्ट मैचेस. सो दैट्स अ लॉट ऑफ क्रिकेट. आई सपोज तब ऑप्शंस बड़ी कम थी. सीज़न शुरू में जब मैंने क्रिकेट हम जब ख़त्म भी किया, आई सपोज ऑफ सीज़न हमारा समर में होता था और मैं लैंकाशायर से खेलता था और सितंबर ऑनवर्ड्स टिल मार्च अप्रैल पाकिस्तान से खेलते थे. डाइट प्लान कोई स्पेशल इतनी अवेयरनेस नहीं थी, बस ट्रेनिंग बड़ी. बॉलिंग दबा के की, जस्ट बॉलिंग. फास्ट बॉलर्स कैन ओनली इम्प्रूव बाय बॉलिंग. द मोर यू बॉल द बेटर यू बिकम. योर बॉलिंग मसल्स गेट स्ट्रॉन्ग. और बॉलिंग मसल है क्या? बॉलिंग मसल एक मसल नहीं है. बैक नहीं है, शोल्डर नहीं है, ग्रॉइन नहीं है, थाई नहीं है, हैमस्ट्रिंग नहीं है. इट्स एवरी मसल इन द बॉडी. बाल से लेके आपकी पाँव की छोटी उंगली तक यूज़ होती है. तो वो जितनी बॉलिंग करेंगे वो सारी जो एक कोऑर्डिनेशन है, जब हम कहते हैं रिदम है, वो आपके मसल सारे स्ट्रांग होते हैं. और उससे फिर जब मैं नया नया आया था 17 साल 18 साल की उम्र में टीम में, तो मेरी पेस होनी है 131. रफ आइडिया गेस कर रहा हूँ. सो बाय द टाइम 2-1 साल काउंटी 88 में खेली मैंने, तो 89 में मेरी पेस 8 से 10 किलोमीटर तेज़ हुई थी. आई कुड फील माई सेल्फ एज अ बॉलर कि मेरी पेस बड़ी हुई है. सो क्रिकेट आजकल लड़के आते हैं कहते हैं जी मैं 18 गेंद करूँगा. मैं कहना है गेंद मैंने दे, तू वापस जा. 18 गेंद तो जिस्म खुलता है ना. आई एम ऑल फॉर साइंस इन स्पोर्ट्स. आई एम ऑल फॉर इट एंड आई एम वेरी क्या उसे कहते हैं एडवोकेट हूँ इसका. बट कुछ चीज़ें हैं जो साइंस नहीं बता सकती. कुछ चीज़ें हैं कि बॉलिंग करने से आपकी बॉलिंग मसल बढ़ेंगे, उसी से आपकी पेस आएगी, उसी से आपको एक्सपीरियंस आएगा. तो मैं विटनेस उस बात का. हम जब भी नेट साथ करते थे, लाइक आते ही सबसे पहले तो सिर्फ वार्म अप के लिए 5 किलोमीटर्स की रनिंग हुआ करती थी हमें. उसके बाद जब हमारा नेट
सेशन शुरू होता था तो ये बॉल पकड़ लेते थे और घंटा डेढ़ लगे रहते थे। ये बात जो इन्होंने आज की है, जो वर्कलोड की एक टर्मिनोलॉजी आ गई क्रिकेट के अंदर, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिटनेस से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स है। जितनी ज़्यादा बॉल करते थे, जाहिर सी बात है, इसी वजह से एक मेन मैं समझता हूँ ये की है इनकी सक्सेस का, कि यूज़ टू बॉल लाइक 2 आवर्स गेंद करते थे, और उससे जिस तरह मसल जो वसीम भाई ने भी बात की है, वो वाकई बॉल करा के डेवलप है। इसी तरह बैट्समैन के बैटिंग करके मिसबा से पूछे बताएगा, बैटिंग के भी मसल्स, तो जितनी ज़्यादा आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उस स्किल की, उतना ज़्यादा आप मैच फिट भी होंगे और लंबा करियर भी हो सकता है आपका। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर मोइन भाई, और इनका एक्स हैंडल है साजिया23। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, आई हैव क्वेश्चन फॉर मोइन भाई। मोइन भाई, द क्वेश्चन इज, आई एम अ टॉल गाय, ऑल्सो अ विकेट कीपर। माई फ्रेंड सेज tall boy could not be a good wicket keeper. Is that right? Also want some wicket keeping tips from you. सबसे पहले मोइनी उनको ये पूछ के आपके दोस्त ने क्रिकेट खेली? मैं बिल्कुल ये बिल्कुल साथ, थैंक यू वेरी मच एंड वालेकुम अस्सलाम। जो वसीम भाई ने बात की है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके दोस्तों ने किसी लेवल की क्रिकेट खेली है कभी या नहीं खेली है, क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर लोग आपको डिस्करेज करने वाले मिलते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो इनकरेज करते हैं। आई थिंक यू हैव अपॉर्चुनिटी, आप इस हाइट के साथ अगर विकेट कीपर बनते हैं तो नेचुरली आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज है, उसमें आपकी रीच भी ज़्यादा होगी। इवन इन बैटिंग, आप बैटिंग में भी बहुत ज़्यादा इस हाइट के साथ कवर कर सकते हैं दूर दूर की बॉलें भी। तो अगर आप सीरियसली क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो डू प्रैक्टिस अ लॉट, और किसी अगर क्लब से खेलते हैं तो यू मस्ट गेट कोचिंग, और कोचिंग मिलती है तो आप नेचुरली इस पाथ पे से अपनी सिटी को, हमारे शहर में आप रहते हैं कराची में, तो कराची को भी रिप्रेजेंट करते हैं, एंड देन आप रीजनल लेवल पे और फिर नेशनल लेवल पे आप क्रिकेट खेल सकते हैं। सो गुड लक। एडम गिलक्रिस्ट की एग्जांपल सामने आपके। हाँ, एडम गिलक्रिस्ट बिल्कुल 6 फुटा होता था वो, 6 मतलब कर सकते हैं, कर सकते हैं, 100% कर आप सकते हैं। इनफैक्ट मेरा ख्याल है आप जितने लंबे होंगे उतनी रिच होगी। मैं वही बोल रहा हूँ, ये तो एक बात बड़े हमारे पाकिस्तान में और अगर लंबी पिद्दी लग गई ना तो थल्ले भी नहीं होया। वैसे आपको एक चीज करनी है कि उठन बैठन की प्रैक्टिस ज़्यादा, उठन बैठन की प्रैक्टिस। दोबारा जरा ये मिसबा का क्लोजअप दिखाएं, और ये दोबारा मिसबा, ये वाली आपने ड्रिल जरूर करनी जो मिसबा आपको बता रहे हैं। ड्रिल बताएं प्लीज। वो बंदा नाराज हो जाएगा। बताएं, बगैर नाम लिया आप बताएं। उठन बैठन की प्रैक्टिस, उठन बैठन की प्रैक्टिस ज़्यादा। That's really cute by the ये way. तो वही है ना जोक। अच्छा, त्रा निकलेंदा भी कुछ मिलेगा। अब्दुल रहमान का सवाल है, अब्दुल रहमान एक्स का आपका हैंडल अब्दुल रहमान ही है। What are the some effective ways for youngsters to develop their ability to play against fast bowlers? My question is from Misbah and Shoaib bhai. How they tackled pace when they were playing club cricket or under 19? Please explain. Thanks a lot, Abdul Rahman. जी जी प्लीज। मैं हुणे एनी परफॉर्मेंस देती है ਤੁਸੀਂ भाई मेरे को लेवल 3 कोचिंग का वो सर्टिफिकेट नहीं है, प्लीज जरा दो। फास्ट बॉलिंग को कैसे टैकल करना? जी, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो फास्ट बॉलिंग को खेलने के लिए वो आपका रिएक्शन टाइम है। रिएक्शन टाइम आपने अगर इम्प्रूव करना है तो उसकी ड्रिल्स आपने करनी है, आपने कम फासले से खेलना है, कोशिश करनी है कि बॉलिंग मशीन पे अगर खेल सकते हैं। अगर बॉलिंग मशीन अवेलेबल नहीं है तो आजकल तो स्टिक्स के साथ बॉलिंग करते हैं। एक दूसरे को में रहता है वहाँ पे फॉर इंस्टेंस ये फैसिलिटीज नहीं है। छोटे फासले पे आप फास्ट बॉलर को छोटे फासले पे आप स्लिपरी सीमेंट विकेट्स होती हैं, जैसे जहाँ पे बॉल थोड़ा स्किड करता है, बाउंस ज़्यादा होता है, वहाँ पे प्रैक्टिस करें। 15 गज से प्रैक्टिस करें, प्लास्टिक के बॉल्स ले लें, चिप्स पे जो है उससे प्रैक्टिस करें, वो बॉल बहुत तेज आता है। अच्छा, जस्ट टू ऐड, कुछ लोग गोल्फ बॉल्स इस्तेमाल करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। हमने प्रैक्टिस की हुई है गोल्फ बॉल वेस्ट इंडीज जाने से पहले। शोएब मोहम्मद करता था, ओपनर था। सलीम मलिक भी करते थे। शोएब मलिक आई थिंक दोनों छोड़ने की भी करते थे और पुल करने की भी करते थे। एक और चीज़ से भी प्रैक्टिस हो सकती है, जो प्रॉपर हार्ड बॉल है उसके अंदर एक कॉक बॉल होता है, उसके अंदर बिल्कुल उसके अंदर आप जब उसे खोलते हैं तो वो बहुत स्किड होता है बॉल। उससे भी अगर आपने पेस को अमावस की रात कब्रिस्तान में जाके एक टांग पे खड़े होना
उसके बाद एक तारा टूटेगा तो फिर आपके रिफ्लेक्सेस तेज होंगे। कॉक बॉल कहते तो किਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। लेकिन वसीम भाई आपके साथ वो खेले हुए हैं जाहिद फजल वो इस बॉल से, इजाज भी आपके बड़े पुराने दोस्त हैं, वो इन बॉलों से प्रैक्टिस करते थे। यार टेनिस बॉल से तो हमने भी की, टेनिस गीले बॉल ऊपर से उसको शेव करके गीला करके बहुत तरीके डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स वाली बात है, जिसको जो मिल जाए जिससे वो उसको समझे वो है। सीरियस वाला जवाब हमारा, उस पे अमल करना है, मजाक वाला वसीम भाई का। अच्छा चलिए, वो बाउंसर I think they have gathered that bit। बड़ा बाउंसर ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਾਵਸ ਦੀ ਰਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਲਾਣਾ ਨਾ ਕਿਧਰੇ। अमावस की रात का बता भी सिर्फ एक नाग ही सकते हैं आपको कि एग्जैक्टली कौन सी रात को वो आएगा। मैं नाग I'm not saying that. राइट, आदित्य शुक्ला पूछ रहे हैं, आदित्य शुक्ला आपका एक्स हैंडल है कैन ILF, I don't know what that means, but okay, Aditya Shukla, T20 cricket has been included in Olympic of 2028. So do you think due to long time of game ODI ODI format would eventually die out as majority of team would prefer to play T20? Look, die out तो नहीं होना चाहिए। I mean बड़ा it's one day cricket, white ball cricket शुरू ही one day हुई, मगर इसको कुछ change करना पड़ेगा मेरे ख्याल में, because it's became, वही मैं बता रहा था आपको, 10 से 11th till the 39th over, it's kind of a deal between batters and bowlers। तुम 4 लिए जाओ, हम दिए जाएंगे 300 250 सवा 300 करेंगे। So वो period जो है वो बड़ा डल है। Even as an ex-player and a guy who talk on cricket quite a bit, who commentates as well, I think इसको स्ट्रेट अवे जो एक जेन में आता है कि इसको 40 ओवर का कर दें और एक गेंद कर दें। किसी ने मैसेज भी किया था, सॉरी, और क्यों नहीं आपका मैसेज नहीं पढ़ पाया। रूल्स अमेंड होते रहते हैं टाइम टू एवरी ईयर, कोई ना कोई नया रूल आ रहा होता है। इवन तो व्हाई नॉट दिस के कमेंट्री डिस्कस कर रहे थे कि इसको या तो 2 इनिंग्स कर दें 25-25 ओवर्स की, ये जो अंडर लाइट्स आपको डिसएडवांटेज रहता है। प्लेइंग 25 ओवर गेम, हमारा 2002 में ये खेले थे हम कार्डिफ में, इंडोर डोम में था। आई थिंक इट वाज वर्ल्ड 11 वर्सेस एशिया 11 और समथिंग, और उसमें हम खेले थे 25 ओवर, उन्होंने बॉलिंग की, फिर फिर हमने बैटिंग की, 2 इनिंग्स का था। इट बिकेम इंटरेस्टिंग इन द एंड बट इट बिकेम टू लॉन्ग। एक चीज बड़ी अच्छी हो जाएगी, एक चीज बहुत अच्छी हो जाएगी उससे, 100 शो करने पैने ने अगर 2-4 इनिंग होगी। तेरी मेहरबानी, पहले इधर हालात जो है टाइट हुए। अहमद रियाज चौधरी, आपका एक्स हैंडल आप कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम ऑल ग्रेट्स इंक्लूडिंग ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द किंग फखर आलम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। माय क्वेश्चन इज फॉर वसीम भाई, इज फखर अ गुड पायलट? हाँ जी भाईजान दसो। Yeah, the guy have flown the plane around the world alone. So yes, he's a very safe driver. He's got amazing knowledge. But मैं जब पहले तो बैठता मैं हल्का जो डरे हो यहाँ से। But I got to give credit to Wasim because he flew the airplane as well and he flew it really well. अब आपने अगला सवाल मुझसे किया है इसी ट्वीट के अंदर और आपने कहा है कि who will be next to fly with you, शोएब, मिसबा और मोइन? I would love to take these guys out flying, and I'm hoping that I will. I think सबसे पहले इनमें से I think इतना बड़ा तेरा नाम है, थी जहाज कोई पैदा कर लबना पैदा करने में थोड़ा जरा मुश्किल है। नहीं, यहाँ कॉन्टैक्ट्स इतने हैं, कुछ कर लेंगे सर, कुछ कर लेंगे। अब्दुल्ला शामी का सवाल है वसीम अकरम आपसे कि वसीम, कल आपने कहा था कि स्पोर्ट्स पे आ जाओ मिलना, तो अब आप प्लीज मुझे इस्लामाबाद से टिकट भिजवा दें। अब्दुल्ला शामी, अब 3600 मैसेज करोगे बेटा, एक तो मिल ही जाएगा हमें। ऑलराइट, अच्छा जी, समीर तारिक का सवाल है, क्वेश्चन फॉर ऑल द पैनलिस्ट्स इज दैट वी आर जजिंग शादाब टू अर्ली इन द वर्ल्ड कप. He has played only on flat tracks till now and hasn't got any game on spinning tracks. Zampa was struggling before too, but today performed as pitch suited him and other spinners. जनाब जवाब दें इसका. आई डोंट थिंक आज कोई इतना स्पिन हो रहा था बॉल. जो लास्ट मैच हुआ था जिसपे साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच था वो जी, उस पे बॉल स्पिन हो रहा था. लेकिन आज वाले पिच पे बॉल इतना टर्न नहीं हुआ. आज जो है थ्रू द लाइन इवन स्पिनर्स को जो थे वो शॉट्स लग रहे थे. लेकिन शादाब नो डाउट ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं बॉलिंग में. और उसमें जैम्पा भी जो हैं उनकी भी अगर आज देखा जाए तो लेग स्पिन अभी भी जगह पे नहीं गिर रही थी. लेकिन उन्होंने जो स्लाइडर्स किए जिसको हम सीधा बॉल कहते हैं और जो गुगलीस थी वो उनकी अच्छी जगह पे गिर रही थी. और रिस्ट स्पिनर जब आपका बॉल नई जगह पे गिर रहा हो, और दूसरा ये भी एक एलिमेंट आ जाता है शादाब के उसमें
कि एज अ टीम, एज अ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, दे एक्सपेक्ट 10 overs फ्रॉम हिम, नॉट लाइक 6 overs और 4 overs. तो इसलिए मेरा ख्याल है कि चेंज होनी चाहिए. All right, thank you very much. नादिर हसनैन, आपका एक्स हैंडल है नादिर 33846 _, बड़ा लंबा हुआ है. जनाब नादिर ने बड़ा वो है, उन्होंने एक वीडियो क्लिप लगाया हुआ है यहाँ पर एक और चैनल का, और सवाल किया है उन्होंने. On another television channel, the famous and outstanding batsman Mohammad Yusuf had very strong words to say about you, Shoaib Malik, and he was surprised that both Moin Khan and Wasim Akram did not stop you from saying words about Babar Azam's captaincy. That's what Yusuf said about me and Moin. Yeah, that you guys did not interrupt him. हमने रोका नहीं. एक मिनट. So मैं इसको थोड़ा सा वो कर दूँ. That Moin, that he was surprised that Moin and Wasim Akram did not stop Shoaib Malik from saying about Babar Azam's captaincy. What would you say to that? सबसे पहले तो I would say to that is, at least I would like to say that I'm so happy that people who are sitting on other channels are also watching our show. I think that's the best thing that I'm really enjoying that. Thank you. We're truly honored for that. I like Yusuf. दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि शोएब ने कोई कमेंट नहीं की थी. देयर वाज अ पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम ए ट्वीट एक्स फैन ऑफ आवर्स हु स्पेसिफिकली आस्क्ड, इनफैक्ट अगर उस क्वेश्चन को सही तरीके से सोचें तो वो एक्चुअली बड़ा मायने खेज सवाल था. उन्होंने कहा कि ये लोग बार बार बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से बात करते हैं. अगर बाबर आजम को चलें कप्तानी से, वर्ल्ड कप के बाद खुद कहते हैं कि मैं नहीं करना चाहता कप्तानी, तो कौन कर सकता है उनके बाद कप्तानी? और ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक कॉन्वर्सेशन है. तो ये जो अचानक लोग जो हैं वो हो जाते हैं. अलबत्ता शोएब, आप कुछ बताना चाह रहे थे मोहम्मद यूसुफ के हवाले से हमें. उन्होंने तो बड़े स्ट्रॉन्ग वो किया कि हाउ कुड यू मेक सच एन इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट. यूसुफ भाई के साथ मेरा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है, और जहाँ पे भी मिलते हैं हमारा बड़ा हंसी मजाक होता है, और आई रियली रिस्पेक्ट हिम. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरा राइट है कि अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं उसका ज़रूर दूंगा, लेकिन अगर उसको कोई भी पूरे एक तो पहले सवाल को समझ लेते, फिर मेरे जवाब को समझ लेते, तो किसी चैनल पे भी जो है ना, आपने इफ कहा था, इफ आई रिमेंबर दैट. बिल्कुल. और मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ यूसुफ भाई को, यूसुफ भाई आई लव यू, बस. अरे वाह, जबरदस्त. ये तो जज्बाती सी कहानी होगी ये थोड़ी सी. अच्छा जनाब, डॉक्टर झाजेब